Good evening, students. Today we will study your biology chapter of 10th class English medium. Uh, that is how do organisms reproduce. Firstly, we have to know the term why the organisms generally used to reproduce. Okay. Now the importance of reproduction. Generally, reproductions is generally used to do for changes in evolutions and changes of variation. Evolutions के लिए और variations के लिए जो human beings हैं वो generally reproductions करते हैं, ठीक है, for producing their young ones और अपने generation by generation को बढ़ाने के लिए reproduction is a essential aspect for the human beings and animals also, ठीक है. Reproduction is generally considered in animals. Okay. Now most of the certain organism also, ठीक है, बहुत सारे जगह पे sexual reproduction takes place करते हैं. I will tell you. But today, why the reproduction is necessary? The reproduction is necessary for increasing their generation, which means first generation to second and second to third. ठीक है, generation by generation अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए ये क्या करते हैं? Reproductions करते हैं. Next, also changes in variations. ठीक है, वेरिएशंस के लिए भी जनरली इनमें रिप्रोडक्शंस होते हैं. वेरिएशंस मतलब इनमें जो विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है. इफ यू हैव सीन द प्लांट्स, जनरली जो प्लांट्स के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो दूसरे प्लांट्स होते हैं, जनरली सिमिलर विद दैट प्लांट, वो अपने पेरेंट्स की तरह सेम दिखते हैं. लेकिन इन ह्यूमंस जनरली जो उनके जो पेरेंट्स होते हैं और उनके जो चाइल्ड होते हैं, देयर इज अ टू मच डिफरेंस बिटवीन देयर चाइल्ड एंड बोथ द जेनेटिक मटेरियल, बोथ द फेस कलर, है ना, एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स आर जनरली सिमिलर, बट देयर समथिंग इज डिफरेंट. ओके, कुछ ना कुछ चीज उनमें अलग देखने को मिलेगा. ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स आल्सो, ठीक है. बट इन अ प्लांट्स all the things maybe 95% are similar. आपको plants में सारी की सारी चीजें सेम देखने को मिलेगी, whether it is color, whether it is flower, whether it is उसके roots, जड़ जो भी होंगे सारी चीजें क्लियर मिलेगी. तो वेरिएशंस जो है जनरली ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स वगैरह सब में देखने को मिलता है. एंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट इज इवोल्यूशंस. इवोल्यूशंस जो होती हैं जनरली, एंड दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है जनरली ये 3 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है. And after that, reproduction is essential. Generally, reproduction, where does it takes place? Generally, reproduction takes place in 3 steps. Okay, and what is that step? Step is that reproduction is carried out in a 3 phase. First phase is vegetative. Second is asexual, and third is sexual. Generally, reproduction is carried out in a 3 process: vegetative reproduction, asexual reproduction, and sexual reproduction. 3 प्रकार के reproductions होते हैं जनरली: vegetative, asexual, and sexual. Vegetative reproduction generally takes place in plant sections also, ठीक है. और asexual reproduction is also takes place in most of the plants, organisms, and animals also, ठीक है. बहुत सारे organisms में आपको देखने को मिलेगा where the single gamete. In asexual reproduction there is a सिंगल गैमेट. सिंगल गैमेट मतलब एक ही सेल्स जो है इनको फॉर्म कर सकते हैं. बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज 2 गैमेट. यहाँ पे 2 गैमेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है. एंड दीज 2 गैमेट्स आर मेल एंड फीमेल. यहाँ पे 2 गैमेट्स की जरूरत पड़ती है, मेल एंड फीमेल, इन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स आल्सो, ठीक है. That's the sexual reproduction, and the most important and most variations changes takes place in sexual reproduction, and this reproduction is superior than asexual and vegetative because it has most advanced functions comparison than both two reproduction. ठीक है, जो sexual reproduction होता है वो इनका बहुत higher version होता है, क्योंकि हमको इसमें बहुत सारे प्रोजेनी, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग देखने को मिलते हैं और इनमें वेरिएशंस होते हैं, इवोल्यूशंस देखने को मिलता है इसमें. लेकिन वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम देखने को मिलता है. इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ सुपीरियर देन बोथ दैट. इन दोनों से ये सुपीरियर होते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो बिफोर स्टार्टिंग द asexual reproduction, I want to tell you that asexual reproduction means there is only one gamete is responsible for producing their young ones. ठीक है, जो कि asexual reproduction में सिर्फ और सिर्फ एक ही gamete, ठीक है. Here it is, I am writing here sexual reproductions. Okay, reproduction is a short form. Only single gamete is capable of producing their offspring. ऑफस्प्रिंग मतलब होता है उनके बच्चे, ठीक है.
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है ओनली सिंगल गैमेट इज, ठीक है, जो भी गैमेट्स इनके बनते हैं, ओनली सिंगल गैमेट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ऑफस्प्रिंग। इनमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल गैमेट जो होता है, लाइक सपोज आई एम ड्राइंग एग्जांपल ऑफ एनी सेल्स, ये एक सेल है, सेल में क्या होगा, फर्दर डिवीजन होता है, डिवीजन होके ये दो फिर ऐसे छोटे छोटे से सेल्स बन जाते हैं, एंड देन फर्दर फिर डिवीजन होता है, डिवीजन होने के बाद ये जो सेल्स हैं आपस में वो अलग होके क्या हो जाते हैं, सेपरेट्स हो जाते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द डॉटर सेल्स। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, डॉटर सेल्स के नाम से, ठीक है। डॉटर सेल्स मींस उनके ऑफस्प्रिंग, उनके बच्चे, ठीक है। फर्दर डॉटर सेल्स डिवाइड एंड प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग मोर एंड मोर। सो अगर मैं बात करता हूं, सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अमीबा, यू ऑल आर फेमिलियर विद दैट टर्म, अमीबा के बारे में आप लोग जानते होंगे। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेयर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, जहां पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और अमीबा में जनरली जो एक सेल्स है वो डिवाइड होते हैं, डिवाइड होने के बाद आपके दो सेल्स बनते हैं, दो सेल्स के बाद उनके जो अलग अलग दो डॉटर सेल्स निकलते हैं, इसे हम कहते हैं अमीबा। और ये पूरा जो रिप्रोडक्शन का फेज है इसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है। जो रिप्रोडक्शन का फेज होता है उसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू रब ऑल दिस थिंग, सो इट विल टेक टाइम। So here we have discussed the binary fission in amoeba. Amoeba we have seen that जो amoeba होता है वो जनरली क्या करता है, इनका जो स्ट्रक्चर्स है, एक सेल्स डिवाइड होके अलग अलग डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। इन अमीबा देयर इज ओनली सिंगल सेल्स, अमीबा इज अ, इफ यू विल सी द डायग्राम लाइक दिस इज द अमीबा, एंड अमीबा यही फर्दर आगे चल के अलग अलग सेल्स में बढ़ते हैं, और ये यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। यूनिसेलुलर मतलब होता है दोज ऑर्गेनिज्म which are, so in amoeba you all have seen that amoeba is a unicellular organism, it means it is made up of single cell। amoeba जो होते हैं सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं, एंड सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द लाइफ एसेंशियल एक्टिविटी। इनका एक ही सेल्स पूरा का पूरा एसेंशियल एक्टिविटी अमीबा के अंदर करता है, लाइक ईटिंग, लोकोमोशंस, ठीक है, डाइजेस्टिंग, ठीक है, वॉकिंग, इधर उधर हिलने डुलने का जो काम है अमीबा में वो जनरली यूनिसेलुलर सिंगल सेल्स ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इफ वी टेकिंग एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन, जनरली वी नो दैट प्लेनेरिया, ठीक है, जो प्लेनेरिया जो होता है वो रीजनरेशन का पार्ट होता है। रीजनरेशन मींस रीजनरेट होना, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में और डिवाइड होते जाना, दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन मतलब अपने पुराने जन्म से लेके रिलेटेड होते हैं, उसे हम रीजनरेशन कहते हैं। अगर मैं प्लेनेरिया का डायग्राम सपोज ड्रॉ करता हूं तो फर्दर इनमें सेल डिवीजन होके दो छोटे छोटे से अलग अलग फॉर्म में बन जाते हैं, और दिस इज आल्सो कॉल्ड रीजनरेशन प्रोसेस which takes place in planaria, and it is also considered in asexual reproductions. Now next, budding. If you have familiar with that diagram, and suppose this is the diagram of hydra and there is bird like structures are generally coming। हाइड्रा का अगर आप लोगों ने पौधा देखा होगा तो वहां पे एक छोटे छोटे से बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देते हैं। यही बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं जनरली क्या होता है, इन्हीं से फिर ये फर्दर ग्रोथ करते हैं और एक आगे चलकर एक मैच्योर प्लांट बन जाता है, और पुराना वाला जो है वो इमिट आउट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द हाइड्रा। हाइड्रा जो है जनरली बडिंग के प्रोसेस होता है। व्हाई बडिंग नाम, बडिंग जो है इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसमें जो है छोटे छोटे से बर्ड्स निकलते हैं। जैसे इफ यू सी एन पोटैटो, अगर आप लोगों ने कभी पोटैटो देखा होगा तो पोटैटो में ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर जो छोटे छोटे से बर्ड्स निकलते हैं, लेकिन इनमें जो बर्ड्स निकलता है इट इज मोर कंपैरेटिवली ग्रेटर देन द ट्यूबर्स ऑफ पोटैटो। तो जो भी आपका पोटैटो है उसके ट्यूबर से ये ज्यादा बड़ा होता है। ये हाइड्रा के पौधे में आपको देखने को मिलेगा, दिस इज कॉल्ड बडिंग। हाइड्रा में प्लेनेरिया आपको रीजनरेशन में देखने को मिलता है, जो कि हम इस नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये सेल डिविजन्स करके दो अलग अलग डॉटर सेल्स और अपनी संख्या को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट बाइनरी फिजन हमने देखा। बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस इन अमीबा। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड इन दिस ओनली सिंगल सेल्स आर फाउंड, और यही सिंगल सेल्स जो है उन्हें और बहुत सारे लाइफ एसेंशियल फंक्शन करने को प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस the mode of sexual reproduction. Now third we will discuss the vegetative reproduction today. So here I am going to tell you that generally
The second mode is sexual reproduction. Second, sexual reproduction, generally we know that. I will tell you the definition also and in a PDF file after the completion of that video. Sexual reproduction means sexual reproduction which takes place in male and female. ठीक है, मेल और फीमेल के बीच का, मेल से जनरली स्पर्म रिलीज होते हैं और फीमेल से जनरली ओवम रिलीज होते हैं. ठीक है, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल इंटरकोर्स, व्हेन दैट स्पर्म एंड ओवम आर मीट दे फॉर्म द जाइगोट. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट. ये एक सिंगल एन होता है, ये भी सिंगल एन होता है, लेकिन जब यहाँ पे मिलते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, डबल एन. इसे हम जाइगोट कहते हैं. एंड आफ्टर द जाइगोट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. स्पर्म मेल गैमेट होता है और ओवम जो है फीमेल गैमेट होता है. व्हेन द स्पर्म मेल गैमेट एंड ओवम फीमेल गैमेट आर कंबाइंड टू फ्यूज दे फॉर्म द जाइगोट. जाइगोट का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. जब मेल और फीमेल गैमेट आकर आपस में मिल जाते हैं, दिस इज कॉल्ड जाइगोट. ठीक है, इसी को हम जाइगोट के नाम से जानते हैं. आफ्टर दैट जाइगोट द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है डिविजन्स ऑफ सेल्स. इनके जो जाइगोट होते हैं उनमें डिविजन्स आने चालू हो जाते हैं. ठीक है, जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जनरली टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स एंड मोस्ट ऑफ द अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा. ठीक है, इट इज द मोस्ट. अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल सबसे बेस्ट होगा ह्यूमन बीइंग्स. और अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता हूं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोगों ने तीन प्रकार का देखा. बडिंग देखा हाइड्रा में, रीजनरेशन देखा प्लेनेरिया में, और आप लोगों ने अमीबा देखा फिजन में. ठीक है, जनरली आपको मैं क्लियर कर दूं दो चीज. फिजन और फ्यूजन में बहुत अंतर होता है. फ्यूजन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फ्यूजन. फ्यूजन हो रहा है वहां पे. ठीक है, फ्यूजन मतलब एक चीज आकर जुड़ रही है. फिजन का मतलब क्या होता है, टूट के बिखर जाना. ठीक है, फिजन का मतलब जैसे बॉम्ब वगैरह एक्सप्लोड होते हैं तो जो बॉम्ब होते हैं वो फिजन होते हैं. फटने के बाद इमिट आउट होती है उसकी एनर्जी, बाहर की तरफ निकलती है. दिस इज कॉल्ड फिजन. और फ्यूजन का मतलब होता है मेल और फीमेल, जो भी मेल और फीमेल स्पर्म ओवम है वो आके एक तरफ से जुड़ जाती है. एंड दैट इज कॉल्ड फ्यूजन. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड जाइगोट. कई बार लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं या बच्चे, फिजन में और फ्यूजन में क्या डिफरेंस है. तो फिजन में डिफरेंस ये है कि जो भी एनर्जी होती है वो इमिट आउट होती है. फ्यूजन में जो भी एनर्जी होती है वो या फिर जो भी सेल्स होते हैं वो आपस में आके जुड़ जाते हैं. Now, and this is the most and advanced form of sexual reproduction. Sexual reproduction means it is a special type of reproduction in which there is two types of gametes are required. First male and second is female is called sexual reproduction. After that, the completion of that class, I will also send you the PDF file. Till then, keep revises, and in next class we will discuss the vegetative reproduction. Okay, vegetative reproductions are generally takes place by pollinations. Pollination, you all heard about the self pollination and cross pollination. आप लोगों ने पढ़ा होगा. So I think this is enough for today class. Till then, you all have to keep revises. I will also send you PDF. Okay, thank you student.